Assalamualaikum students, this is me Mukhar Ismail and welcome in my data structure and algorithm video lectures. Today I'm gonna tell you what is infix, prefix and postfix and how we can convert a infix to prefix and infix to postfix using stacks. In this lecture I will also tell you about the parenthesis rules and parsing rules. Okay, let's start. Expression parsing. Parsing is the process of analyzing a string of symbols expressed in natural or computer language that will accord formal grammar, which means we are converting our normal expressions into computer understandable notations. The way to write arithmetic expression is known as notation. Expression parsing in data structure means the evaluate of arithmetics and logical expressions. Like here is the example, you can see 9 plus 9 and c minus p. There are two operands and one operator, and computer can understand easily what is the function performing between these two operands. An expression can be written with constant variables and symbols that can act as an operator, operands and parentheses. It is difficult for computer to maintain the order of these operations within these operators, and a computer cannot understand how operators and operands are communicating with each other. In normal language we can use DeMoss laws or any other some other mathematical formulas and laws to solve the expressions, but it is difficult for computer to understand the human language, so we add parentheses to make it easy for computer. All this expression need to follow a specific set of rules, and these are some rules, specified rules we will discuss in further slides. Types of expression. An arithmetic operation is expressed in the form of notation. Now there are three ways to write an expression in arithmetics. One is an infix notation, second is prefix notation, which is also known as polish, and third one is postfix notation, which is also known as reverse polish notation. Before starting the topic of prefix, infix and postfix, you must understand what is the precedence in data structure. Order of precedence means what order the operators need to follow in a statement of expressions. This is commonly used while working with infix notation. Like in normal expressions, you use DeMoss law, which means that division is a higher priority than multiplication, then addition, then subtraction. But in computer notation, multiplication and division have equal property while addition and subtraction have equal property. So whenever you are going to solve computer based notations, you must follow these rules. Here is the level of precedence in data structure. You can see that exponential function have the highest priority while multiplication and division has a second highest but equal priority, while the addition and subtraction has the lowest but equal priority. Forget about these associativity for right associative and left associative. We will talk about later. Now let us learn how to operator position decide the type of notation. The first one expression is infix notation. In infix notation, operators are used in between the operands. While reading an expression, infix notation is quite easy for humans, but it's quite time and space consuming to process an infix arguments when it came to the computer algorithm. In infix notation, the operator placed in between operands. If we saw an example, a plus b is an infix notation where you can see that a and b are two operands while plus sign is an operation, and this operation is placed in between a and b. Same as it is a plus b star c minus d is a infix notation where every operator is placed inside in between two operands, and same as it is 2 plus 5 minus 8 divided by 10 is also a infix notation. Infix notation needs extra information to make the order of evaluation of the operator clear.
which means that if you are watching this 2 plus 5 minus 8 divided by 10, you don't know which operator will solve first, because there is no parenthesis, and for computer this is much difficult to solve. For this purpose, rules built into the language about operators, precedence and associativity and parentheses to allow user to override these rules. While infix notation is difficult to parse by computers in comparison to prefix and postfix notations, because whenever we using infix notation, this is much difficult to solve for computer, as it is complex and taking extra memory and extra time to solve itself. For example, here is a expression like p static and then opening parenthesis q plus r closing and then slash of s. Associativity rules suggest that expression needs to be performed from left to right, such that multiplication by p is done before the division of q. Similarly, rule of precedence suggests that multiplication and division operator is performed before addition and subtraction operator is done, which means that it is very difficult for computer to understand that which operator will perform first, because if we know that if we solve this expression by Demar's law, then we should perform multiplication first and then division and then the sum of q and r. But in term of a parenthesis rule, parenthesis saying that sum is the first highest priority and then subtraction or multiplication. So in infix notation there are different complexities and difficulties for computer to solve these type of expressions. The second notation is prefix notation. Here operators is written first followed by an operand. It is also named as Polish notation. In this type of notation, operands are placed before after operators, and operators are placed before operands, so computer can easily understand what is happening in this expression. For example, you can see that plus p and q, the machine will easily understand that it should perform addition in between p and q. Every operator perform operation on value that are immediate to the left of them. The third expression is postfix notation. Postfix notation, primarily the operand is written followed by an operator. It is also named as reverse Polish notation. For example, pq plus. This is the opposite of prefix notation. In postfix notation, you can see that operators are after the operands. For example, ab plus cd minus ed minus ab plus er slash. As for postfix, the same as the prefix operators of the expression is left to right and parentheses are unnecessary. In this type of prefix and postfix type of notations, computer don't need to use parentheses because these expression directly telling the computer that which operator will perform in first. Here are some examples of infix, prefix and postfix notations. You can check in infix notations all operators are placed in between operands, while in prefix notation all operators are before the operands, while in postfix or reverse Polish notations the operators are after the operands. For p plus q plus pq or pq plus. Conversion between notations. It is easy to convert a notation to another one, like infix to postfix or infix to prefix. First of all, suppose that I have an expression like p star q plus r divided by s. I add parentheses on the basis of the priority rule. After that, I am just converting step by step to postfix or to prefix. You can see easily for p star q for postfix I just shift operator after p and q, and for prefix I shift operator
before P and Q, same as it is I shift operator of slash from R and S after in postfix and before for prefix, and the sum operator that is in between these two operators I shift after in postfix and shift before in prefix. In that way we can convert first notation into second or first notation into third. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी वकार इस्माइल। अच्छा, आज हम चेक करेंगे नोटेशंस की कन्वर्जन जिसमें हमारे पास इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे होती है। ओके, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आएगा कि आपको यूजिंग स्टैक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने को कहा जाएगा। ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन, लाइक मैं एक सिंपल एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ जिसे हम कहते हैं a प्लस बी माइनस सी स्टार डी डिवाइडेड बाई ई एंड डिवाइडेड बाई बी। ओके, यहाँ तक ये एक्सप्रेशन हम स्टॉप कर देते हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि हमने पैरेंथेसिस कैसे लगानी है। पैरेंथेसिस लगाना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इसका। पैरेंथेसिस ये हैं कि कंपाइलर को या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को ये चीज़ भी बतानी है कि वो सबसे पहले कौन से वाला पार्ट जो एक्सप्रेशन का वो सॉल्व करेगा। अच्छा, हमारे पास एक रूल था जिसको हम कहते थे PDMAS रूल। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पैरेंथेसिस थी वो सबसे हायर प्रायोरिटी की थी, उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पैरेंथेसिस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये उनकी कोई प्रायोरिटीज़ सेट थी। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करेंगे अपनी कन्वर्जन में नोटेशंस में, जब हम अपनी एक्सप्रेशंस के नोटेशन में बात करेंगे तो हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो इक्वल होगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमारा रूल्स सेक्शंस है। ठीक है, तो रूल्स के सेक्शन में सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो इक्वल होगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो प्रायोरिटी है वो इक्वल होगी, लेकिन लेफ़्ट टू राइट रूल होगा। जो पहले आएगी उसकी प्रायोरिटी पहले होगी, जो बाद में आएगी उसकी बाद में होगी। सपोज करें मैं कहता हूँ कि सब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले आई है तो सब मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। अगर डिवीजन पहले आता और मल्टीप्लिकेशन बाद में आती तो जो डिवीजन है उसकी प्रायोरिटी हाई होती और जो मल्टीप्लिकेशन है जो बाद में आती तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो लोएस्ट होती। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़, हमने पैरेंथेसिस लगानी है। पैरेंथेसिस कैसे लगानी है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट आएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा आ रहा है। देखिए, एडिशन जो है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से तो डेफिनेटली ये लोएस्ट है, और जो सब्ट्रैक्शन है वो भी लोएस्ट है। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ रही है मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन को पैरेंथेसिस में डाल लेंगे। ठीक है, इट्स मीन कि इसको पहले सॉल्व होना है। उसके बाद जब ये सॉल्व होगा तो ये जो है इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं एक ऑपरेंड। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात शुरू में की थी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है वो होती है ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कम्बिनेशन होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है प्लस है, ये ए है, जो बी है, जो सी है, या डी और ई है, ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर पैरेंथेसिस, ये हमारे पास ऑपरेशंस है। ठीक है, सो जब हमारे पास दो ऑपरेंड्स, अच्छा इनफिक्स में आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब दो ऑपरेंड्स के दरमियान एक, ये आपको मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ बता भी चुका हूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो इनफिक्स है, इनफिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें दो ऑपरेंड्स के दरमियान एक ऑपरेशन आ जाए। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, इस केस में दो ऑपरेंड्स के दरमियान एक ऑपरेशन आ गया तो ये हमारे पास एक इनफिक्स नोटेशन है। ठीक है, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें
तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब ऑपरेशन है वो पहले आ रहा है और जो ऑपरेंड्स हैं वो बाद में आ रहे हैं, ठीक है। मींस के हमारे पास ऑपरेशन पहले आ रहा है और जो ऑपरेंड्स हैं वो बाद में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रीफिक्स नोटेशन है। और अगर हम पोस्टफिक्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ऑपरेंड्स के बाद आए, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं और जो ऑपरेशन है वो उनके बाद आ रहा है, तो इस केस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। ओके, जब हम पैरेंथेसिस लगा रहे हैं तो हमने राइट टू लेफ्ट चेक किया। सबसे हायर प्रायोरिटी हमारे पास सी स्टैरिक डी, मींस के स्टैरिक की प्रायोरिटी स्टैरिक है जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने उसको पैरेंथेसिस लगा दी। अब जब ये सॉल्व होगा तो ये इटसेल्फ एक ऑपरेंड बन जाएगा। जब ये ऑपरेंड बनेगा एक, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इस ऑपरेंड की किसी दूसरे ऑपरेंड के साथ, मींस के लेफ्ट टू राइट दोबारा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो वो हमारे पास डिवाइड की है, तो हम डिवाइड को पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ से चेक करेंगे। देखिए, हर बार हम स्टार्ट से चेक कर रहे हैं। एक बार हमने स्टार्ट से चेक किया तो स्टैरिक की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, दूसरी बार स्टार्ट से चेक किया तो डिवाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, तीसरी बार स्टार्ट से चेक किया तो डेफिनेटली प्लस की हायर प्रायोरिटी है, क्योंकि प्लस और माइनस की है तो इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन प्लस और माइनस में प्लस पहले आ रहा है तो हमने प्लस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। आफ्टर दैट दोबारा यहाँ से चेक करेंगे तो माइनस रिमेनिंग है तो हमने माइनस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। ये तो हमारी होगी पैरेंथेसिस। हम इन पैरेंथेसिस के लिए कोई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमने पैरेंथेसिस को कैसे ऐड करना है, और इस रूल्स को हम कहते हैं पार्स रूल्स, ठीक है। ये पार्स रूल भी है कि हम पार्स रूल के थ्रू किस तरह से पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। ओके, हम एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। सपोज करें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ a डिवाइडेड बाई b स्टैरिक c माइनस d प्लस e माइनस f। मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग ले ली जिसमें रैंडम ऑपरेंड्स हैं और रैंडम ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब देखें, मैं राइट टू लेफ्ट चेक कर रहा हूँ। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइड है, क्योंकि डिवाइड और स्टैरिक इक्वल है, लेकिन हमने कहा था जो पहले आएगी उसकी हाईएस्ट होगी, तो हाईएस्ट डिवाइड है, हमने डिवाइड को पैरेंथेसिस लगा ली। अब हमने दोबारा चेक किया तो स्टैरिक हाईएस्ट है, तो हमने स्टैरिक को पहले पैरेंथेसिस लगा ली। फिर हमने चेक किया तो माइनस है, क्योंकि माइनस प्लस इक्वल है, तो डेफिनेटली ये पैरेंथेसिस है। फिर चेक किया फिर प्लस है, और फिर चेक किया फिर माइनस है। तो इस तरह से हम पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। मैं कोई और रैंडम एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, लाइक मैं लेता हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी स्टैरिक e प्लस f डिवाइडेड बाई e, ठीक है। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस लगाएंगे तो डेफिनेटली जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले डिवाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो हम डिवाइड को पैरेंथेसिस लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे स्टैरिक की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली हम स्टैरिक को पैरेंथेसिस लगा लेंगे। फिर हम चेक करेंगे तो डिवाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हम डिवाइड को पैरेंथेसिस लगा लेंगे। फिर हम चेक करेंगे तो पहले प्लस आ रहा है, हम प्लस को लगाएंगे पैरेंथेसिस। याद रखना, हमने हमेशा दो ही ऑपरेंड्स के दरमियान पैरेंथेसिस ऐड करनी है, और जिस ऑपरेंड को पैरेंथेसिस लग चुकी हैं वो खुद एक ऑपरेंड बन जाएगा, वो लॉक हो जाएगा, हम उसके अंदर कहीं भी दोबारा पैरेंथेसिस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे माइनस है तो हम पैरेंथेसिस लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे प्लस है तो हम पैरेंथेसिस लगा लेंगे, ठीक हो गया। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द रूल ऑफ स्टैक, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक रूल। तो स्टैक रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए जिसको हम कहेंगे एक टोकन, ठीक है। टोकन इटसेल्फ हमारे पास वो चीज़ है कि हम कहते हैं कि सबसे पहले हम कौन से वाले आइटम को वो सर्वे कर रहे हैं। हमारे पास ये आइटम्स है, लाइक पैरेंथेसिस आर आइटम्स, ऑपरेंड्स आर आइटम्स एंड ऑपरेशंस आर आइटम्स, ठीक है। उसके बाद द सेकंड वन चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए स्टैक, ठीक है, कि स्टैक के अंदर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब थर्ड वन जो हमें चाहिए वो है, और जो थर्ड वन हमें चाहिए
फोकस आउट, सॉरी, ओके। द थर्ड वन हमें चाहिए, वो चाहिए एरे, जिसको हम कहेंगे आउटपुट एरे, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, कोई भी अपने आइडियाज़ नहीं लगाने, कोई भी और रूल फॉलो नहीं करना, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, अब इसको हम लाइन अप कर लेते हैं, एक टेबल बना लेंगे। ओके, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास सबसे पहला टोकन क्या है, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला टोकन है इसका नंबर 1 ओपनिंग पैरेंथेसिस। हम यहाँ इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को लिख लेते हैं, ठीक है। अब रूल एक और आप ज़रा याद कर लें, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करना लाजमी है, मतलब आपके माइंड में होने चाहिए। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऑपरेशन आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑपरेशन आ जाए, ऑपरेशन में आपकी पैरेंथेसिस भी हो सकती हैं, आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऑपरेशन आ जाए तो उसको पुश कर दो स्टैक में, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऑपरेंड आ जाए लाइक ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक है, तो उसको ऐड कर दो एरे में, ठीक है। ये दो रूल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी ओपनिंग ब्रैकेट के बाद या पैरेंथेसिस के बाद कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाए तो उसके दरमियान जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको पॉप कर दो, ठीक है। मींस के वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये जो पैरेंथेसिस हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और उसके दरमियान जितने ऑपरेशन है वो पॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये रूल 3 है। और रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 ये कहता है अगर किसी लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर आ जाए तो जो लोएस्ट वन है वो पॉप हो जाएंगे, ठीक है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास स्टैक में माइनस मौजूद है और स्टैरिक आ गया है, ठीक है, या डिवाइड आ गया है, या प्लस मौजूद है स्टैरिक या डिवाइड आ गया है, तो उस केस में हम प्लस या माइनस जो पड़ा हुआ है उसको पॉप कर लेंगे और इनको हम स्टैक में ऐड कर देंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये एक स्टैक है जिसमें प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास स्टैक में अगर एक और ऑपरेटर आ गया जिसका नाम स्टैरिक है या डिवाइड है, तो उस केस में हम प्लस को निकाल देंगे और स्टैक में हम उस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को रख लेंगे, ठीक है। ये जो 4 रूल हैं ये बेसिक रूल हैं, ये अपने पास लिख लें, ये आगे चल के यूज़ होने वाले हैं। ओके, अब देखें, अब हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है जो कि फर्स्ट 1 टोकन है। जब हमने इसको ऐड किया, हमने अभी बात की है कि जब कोई ऑपरेशन या पैरेंथेसिस आए तो हमने स्टैक में पुश करनी है, तो हम उसे स्टैक में पुश कर लेंगे, ठीक है। स्टैक में हमने पुश कर लिया, एरे हमारे पास अभी एम्प्टी है, यानी कि ये हमारे पास एक स्टैक है जिसमें हमने पुश कर लिया इस टोकन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टोकन अगेन एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस, हमने उस टोकन को रीड किया और उसको स्टैक में पुश कर लिया। अब स्टैक में हमारे पास 2 पैरेंथेसिस हो गई हैं, एरे अभी भी एम्प्टी है, तो जो स्टैक है उसकी न्यू वैल्यू अब 2 पैरेंथेसिस हो गई हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है एक न्यू टोकन, हमने न्यू टोकन को रीड किया, ठीक है। अभी हमने जो दूसरा रूल फॉलो किया उसमें हमने ये देखा कि जो ऑपरेंड होगा उसको हम एरे में ऐड करेंगे, ठीक है। यू कैन चेक, हम जो ऑपरेंड होगा रूल 2 में वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एरे में। तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्टैक है उसकी वैल्यू सेम रहेंगी, हम एरे में ऐड कर लेंगे। ये एरे है और ये स्टैक है, हमने एरे में ऐड कर लिया और जो स्टैक है वो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। इस केस के लिए भी स्टैक हमारे पास सेम रहेगा, उसमें अभी 2 ही वैल्यूज पड़ी हुई हैं। फिर हमारे पास प्लस आया है, प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेशन है। जब हमने प्लस को रीड किया, प्लस को स्टैक में ऐड करना है क्योंकि ऑपरेशन स्टैक में ऐड होने हैं। तो एरे हमारे पास ए पड़ा हुआ है एज इट इज, तो स्टैक की जो न्यू वैल्यू है, अब हमारे पास स्टैक में 2 पैरेंथेसिस पड़ी हुई हैं और एक प्लस आ गया है, ठीक है।
ओके, उसके बाद अब हमारे पास बी आ गया, ठीक है। बी हमारे पास एक ऑपरेंड है, तो डेफिनेटली जब हम बी को रीड करेंगे तो बी को हम एरे में एंटर कर देंगे, तो स्टैक की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी जो है, ठीक है। मीन्स के स्टैक जो है उसमें हमारे पास 2 पैरेंथेसिस और 1 प्लस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये आप लोगों ने ना, मैं गलती कोई नहीं करनी है, हर चीज़ को बिल्कुल तरीके से सर्वे करना है, कोई भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई है, जब हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड किया है, तो हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड किया है, तो हमने ये बात की थी कि रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग को आपस में कट कर लेंगे और उसके दरमियान जितने भी ऑपरेशंस होंगे उन्हें हम पॉप कर लेंगे। यानी कि हमारे पास ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग ये हमारे आपस में कट हो जाएंगी और दरमियान में जो प्लस है ऑपरेशन है वो यहाँ से पॉप हो जाएगा और ऐड हो जाएगा एरे में, यानी कि एरे की न्यू वैल्यू बन जाएगी ए बी प्लस, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टैक बचेगा वो सिंपल बचेगा एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि हमारे पास दोनों पैरेंथेसिस भी कैंसिल होगी और एक प्लस भी पॉप हो चुका है, तो एरे में सिर्फ स्टैक में सिर्फ एक ओपनिंग बच गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, ठीक है। अब जब माइनस को रीड करेंगे, माइनस को रीड किया तो डेफिनेटली माइनस एक ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन ऐड हो जाएगा स्टैक में, तो एरे की जो वैल्यू है वो वही रहेगी जो है। तो जो हमारे पास स्टैक है वो हमारे पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक माइनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है, यहाँ पे एक्चुअली 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस है। पहली ओपनिंग पैरेंथेसिस जब रीड करेंगे, जब हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड की तो हमारे पास स्टैक में इंसर्ट हो जाएगी, एरे हमारे पास सेम रहेगी और स्टैक की जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस है, हमने उसको रीड किया और जब हम उसको रीड करके स्टैक में इंटर कर देंगे तो स्टैक में माइनस और 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस, जो हमारे पास एरे है वो सेम रहेगी और हमारे पास जो स्टैक है उसकी वैल्यूज ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस देन ओपनिंग एंड अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सी इज एन ऑपरेंड। जब हम सी को रीड करेंगे तो वो स्टैक में तो डेफिनेटली ऐड होगा नहीं, हम उसको ऐड करेंगे एरे में, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वो एक ऑपरेंड है जिसने एरे में ऐड होना है, ठीक है। तो स्टैक की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस और फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है स्टैरिक। स्टैरिक एक ऑपरेशन है, डेफिनेटली ऑपरेशन ने स्टैक में ऐड होना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम स्टैरिक को रीड करेंगे तो हम इसको स्टैक में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एरे हमारे पास सेम रहेगी और जो स्टैक की न्यू वैल्यू होगी वो होगी 1 ओपनिंग पैरेंथेसिस देन माइनस देन ओपनिंग देन स्टैरिक, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्टैक में ऐड किया है। उसके बाद डी आ गया, ठीक है। डी जब हम रीड करेंगे, डी क्योंकि एक ऑपरेंड है इसलिए हम इसको एरे में इंसर्ट करेंगे, स्टैक में इंसर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास स्टैक सेम रहेगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एरे की, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास स्टैक है वो वही रहेगा, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो हमारे पास आ रही है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। जब हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड करेंगे, हमारे पास लास्ट स्टैक की वैल्यू क्या थी, ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस ओपनिंग एंड स्टैरिक, ठीक है। तो जब हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड करेंगे तो हमने ये कहा था कि जब हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपस में कैंसिल हो जाएंगी और दरमियाना जो ऑपरेटर है वो पॉप होके वो चला जाएगा
एरे के अंदर। एरे की हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो थी AB प्लस CD, ठीक है। तो जब ये यहाँ से पॉप होगा तो हमारे पास आ जाएगा एरे के अंदर, ठीक है। तो स्टैक की वैल्यू रह जाएगी पीछे ओपनिंग पैरेंथेसिस और माइनस एंड देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। क्योंकि दो ओपनिंग पैरेंथेसिस में से एक कट गई तो एक बच गई, ठीक है। तो स्टैक की न्यू वैल्यू ये आ जाएगी और ये जो स्टैक है वो एरे में आ जाएगा। फिर हम रीड करेंगे डिवाइड को, ठीक है। जब हम डिवाइड को रीड करेंगे तो डिवाइड हमारे पास एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन स्टैक में एंटर हो जाएगा, ठीक है। एरे हमारे पास सेम रहेगी और जो स्टैक की वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगी ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस और डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ई एक ऑपरेंड है। जब हम ई को रीड करेंगे तो ई हमारे पास एरे में जाएगा, तो AB प्लस CD स्टैरिक ई हमारे पास एरे में आ गया और जो स्टैक है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद अब हमारे पास आ गई हैं दो क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। पहली क्लोजिंग पैरेंथेसिस को जब हम रीड करेंगे तो यहाँ से मिस्टेक कहाँ हुई है, ये मिस्टेक हुई है। ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। ये ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे आती है, ये वाली ओपनिंग पैरेंथेसिस इधर आती है और यहाँ भी आती है। जब हम पहली क्लोज करेंगे, जो पहली क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमने रीड की है तो ये आपस में कट हो जाएंगी और ये जो डिवाइड है ये डिवाइड पॉप होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में जब हम दूसरी पैरेंथेसिस रीड करेंगे तो वो भी स्टैक में जाएगी, तो ये भी आपस में कट हो जाएंगी और जो माइनस है वो पॉप होके एरे में आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो जो हमारा स्टैक है वो हो जाएगा एम्प्टी, क्योंकि स्टैक के अंदर अब कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है वो भी स्टार्ट से एंड हो चुकी है, एक्सप्रेशन भी नल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो एरे आएगी ये हमारा फाइनल कन्वर्जन है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल कन्वर्जन है। आप लोगों ने इस कन्वर्जन को बहुत अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर, डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जांपल दी है इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो तभी जाके आपको समझ आएगा कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट होती है। थैंक्स।